जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम हमेशा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 413, 25 जून और फ्राइडे का दिन। दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा अपने प्रोग्राम में। एक कहानी अंग्रेजी की होगी और एक कहानी हिंदी की होगी। अंग्रेजी की कहानी क्यों? सही कहा आपने। दोस्तों, मेरे कुछ सुनने वाले फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं और जिन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं आज एक कहानी उनको समर्पित करता हूं, डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड्स, माय फॉलोअर्स हु आर अब्रॉड एंड हु वांटेड मी टू नरेट एन स्टोरी इन इंग्लिश। दोस्तों, today's story in English is the story of the donkey and the tiger. And I'm sure you will like this story. It's a small story, but message-driven story. One day, the donkey told the tiger, "The grass is blue." The tiger replied, "No, grass is green." The discussion became heated up, and the two decided to submit the issue to arbitration. And to do so, they approached the lion, king of the jungle. Before reaching the clearing in the forest where the lion was sitting on his throne, the donkey started screaming, "Your Highness, is it true that the grass is blue?" The lion replied, "True, the grass is blue." The donkey rushed forward and continued, "The tiger disagrees with me and contradicts me and annoys me. Please punish him." The king then declared, "The tiger will be punished with 5 years of silence." The donkey jumped for the joy and went on his way, content and repeating, "The grass is blue, the grass is blue." The tiger accepted his punishment. But he asked the lion, "Your Majesty, why have you punished me? After all, the grass is green." The lion replied, "In fact, the grass is green." Then the tiger asked, "So why do you punish me?" The lion replied, "That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is not possible for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with a donkey, and on top of that, to come and bother me with that question. The worst waste of time is arguing with the fool and fanatic who doesn't care about the truth of reality, but only the victory of their beliefs and illusions. Never waste time on discussions that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand, and others who are blinded by ego, hatred, and resentment, and the only thing that they want is to be right even if they are not. When ignorance screams, intelligence shuts up. Your peace and tranquility are worth more. Friends, this was a story about a donkey and the tiger, and I'm sure you like this story. You can connect with me on my mobile number +91 9833 880402. I am just closing this chapter and I am moving ahead with the Hindi story. I'm sure you will love Hindu story as well. जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी अंग्रेजी में, और अब मैं आपको सुनाता हूँ जल्दी से एक छोटी सी कहानी हिंदी में, जिसका शीर्षक है काटने वाला और जोड़ने वाला। दोस्तों, एक दिन किसी कारण से स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया। वहां जाकर वो बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांग से दबाकर रख देते हैं, और उसके बाद फिर सुई से उसको सीते हैं, और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं। जब उसने इसी क्रिया को 4-5 बार होते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पापा से कहा कि वो एक बात उनसे पूछना चाहता है।
पापा ने कहा, बेटा बोलो क्या पूछना चाहते हो? तो बेटा बोला, पापा मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूं। आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची के अपने पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा देते हैं, ऐसा क्यों? इसका जो उत्तर उसके पापा ने दिया, उन 2 पंक्तियों में माने उसने जिंदगी का सार ही समझ लिया हो। उसके पापा का जवाब था कि बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, और काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। और यही कारण है कि मैं इस सुई को टोपी पर लगाता हूं और कैंची को पैर के नीचे रखता हूं। दोस्तों, ये थी कहानी काटने वाला और जोड़ने वाला। और इससे पहले मैंने आपको एक अंग्रेजी की कहानी सुनाई थी, द स्टोरी ऑफ द डोंकी एंड द टाइगर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही कहानियां, स्टोरीज पसंद आई होंगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, आपको लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।